his supervision that the government of Delhi is running. And 2 of his ministers are in jail facing serious allegations of bribes or money or not following the process in the liquor scam and the excise scam. Now there's another big scandal in Delhi relating to the Jal Board, relating to the health department. Another thing is coming out. Every day some scandal or scam is tumbling out of the cupboard. And Mr. Kejriwal is the chief minister, but instead of joining an investigation, instead of desiring that the truth should come out, he's constantly running away. By running away from the investigation, he's sending a clear message to the people of Delhi and the country that he has something serious to hide. He is unable to face the truth, and he is scared that something serious has happened which was not correct in law, and perhaps he is worried about the consequences. जो संदेश खाली में हुआ, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से उत्पीड़न हुआ, जमीन को लेके वहां तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है हड़प रहे थे जमीन को, वहां की महिलाओं ने खूब साहस दिखाकर और मीडिया के सहयोग से बंगाल और देश के सामने इस सत्य को उजागर किया। तृणमूल कांग्रेस इससे भाग रही थी, छिपाने का पूरा प्रयोग कर रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी अब जाग रही है कि संदेश खाली में कुछ हुआ। उस समय चुप थे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के साथ एक समझौता हो सकता है। तो राजनीतिक समझौता के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ, उस समझौता के लिए कांग्रेस पार्टी उन महिलाओं के साथ अन्याय सहने देखने को तैयार थी। उनके लिए कोई उनके हक के लिए लड़ने के लिए नहीं तैयार थी। और आज संदेश खाली को जब प्रश्न उठा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को जवाब भी तो देना पड़ेगा। उस समय चुप्पी क्यों? संदेश खाली, braving all odds, came out before the media and exposed the horrific truth of Sandesh Khali, where the Trinamool Congress party and its leaders were molesting ladies, misbehaving with them, snatching away land, grabbing land. It is only because of the media and the bravery of these women that the horrific truth came out. The Trinamool Congress chose to cover it up, tried to see that the truth does not come out, but the BJP went ahead and exposed it. The Congress party at that time chose complete silence. They did not find it appropriate to comment on Sandesh Khali because they were perhaps expecting a tie-up with the Trinamool Congress. Now today when the Congress party is raising questions on Sandesh Khali, they will need to answer. Then now that they don't have a political alliance, they are trying to take political mileage on Sandesh Khali. Why did they choose silence at that when the women were looking for help from all quarters? Except the BJP, not one of those parties came out in the open. कांग्रेस पार्टी केवल वादे करते, काम तो करते नहीं। 10 साल में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी सरकार ने जिस प्रकार से काम किए, अभूतपूर्व है। हर वर्ग देख रहा है कि देश कैसे बदल रहा है, लोगों को क्या फायदे मिले हैं। अब पता पड़ता है एक सरकार उनकी सेवा के लिए लगी है। तो पहले भी वादे करते थे, गरीबी हटाओ की बात की थी, 1970 में गरीबी हटाई। तो वादे करना तो कांग्रेस का एक राजनीतिक इतिहास है, काम नहीं करने का उनका मानसिकता है। बीजेपी वादे ही नहीं, काम करके दिखाती है। तो जो वादे करती बीजेपी उस पर खरे उतरती है, सेवा भाव से उसे पूरा करते हैं। ये दोनों पार्टियों के बीच में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो साफ दिखता है। ऑफ कॉन्स्टेंटली कमिंग अप विद स्लोगन्स एंड प्रॉमिसिंग एनीथिंग बट नेवर वर्किंग टू अचीव इट। दे स्पोक अबाउट गरीबी हटाओ, रिमूविंग पॉवर्टी, डिड दे रिमूव इट? It is only in the last 10 years, under the leadership of Prime Minister Modi, that our government has performed with a clear mandate that we have to serve the people, that the benefits of governance must reach every quarter. And India is transforming at a pace never seen before. So this is the difference of the two models between the Congress and the BJP. The Congress promises and does nothing. The BJP makes a promise which is a commitment and it implements it as Prime Minister Modi's government has. अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। अब ये हाई कोर्ट तय करेगा कि ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, क्या ईडी समन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अब दोनों कोर्ट्स में, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी,
अभी ये मामला अंडर कंसिडरेशन है। ईडी ने जो समन्स बार बार भेजे हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और अब हाई कोर्ट और राउस एवेन्यू कोर्ट दोनों में ही जो मैटर चल रहे हैं उसमें ये तय होगा कि ईडी जो समन बार बार भेज रही है वो कानूनी है कि गैर कानूनी। ये तो बिल्कुल साफ है कि ईडी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी खुद राउस एवेन्यू कोर्ट गई, समन्स के मामले में गई, वो खुद उन्होंने एक केस दर्ज किया ये जानने के लिए कि जो समन्स भेजे जा रहे हैं वो लीगल हैं कि इलीगल हैं, कि जो मुख्यमंत्री समन्स में नहीं आ रहे वो आना या ना आना लीगल है कि इलीगल है।